Hello, students. I'm Shazli from Legal Edge Top Rankers, and I welcome you all to the session on reading comprehension. And the topic is finding the correct keywords or the right keywords. Well, students, ये बड़ा ही interesting topic है because it's going to help students out to become, yeah, like a better reader and of course, active reader. अभी तक many students are struggling with the basic problem that, ma'am, I'm not able to understand passage. Ma'am, I get stuck between the two options given. Ma'am, speed is the concern. I am always lost whenever I'm reading the passage and I'm not able to retain the information given in the passage. ये सारी जो जनरली स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं वन इज अप्रोच टू पैसेज सेकंड इज अप्रोच टू क्वेश्चंस तो आज ये दोनों अप्रोचेस पे हम काम करने वाले हैं सो दैट वी एक्चुअली ओवरकम the lacuna and I know like reading applying knowledge that's a kind of Achilles heel for the students उनका score अभी भी नहीं बढ़ रहा है but probably after attending today's session you will feel a little okay better and probably you will strategize yourself you will definitely organize yourself whenever you read a passage and solve the questions so the session is going to be very fruitful I hope you all will enjoy this thoroughly just a request don't leave the session in between let's have an agreement on it that ma'am we really want to be better reader अगर हम better हैं तो we really want to be the best ठीक है तो let's continue so today we are going to learn strategies to find out the keywords and mark the right keywords in the passage right keywords I'm talking about काफी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि मैम क्वेश्चन को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड तो वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ही हो उसके लिए यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट कीवर्ड्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन ओके अब देखिए यहाँ पे keywords exactly होते क्या है like since the time I have begun the session I'm just using one word that is keyword again and again तो students इस पे अपन बात कर लेते हैं कि exactly keywords होते क्या है keywords देखिए that contains a specific information कोई एक specific information होती है focal point जिसके around पूरा passage होगा आपका focal point okay now it will help students to identify the context of the passage कि passage किस context में लिखा गया है तो keywords help words help in locating the answers in the passage वो भी keywords हो सकते हैं keywords can be found when you scan the passage as you go through the question think of synonyms for the keywords जाहिर सी बात है जब भी आप keywords देखते हैं तो at times they give synonym in the options given so you should know the keyword as well as the synonyms and जब भी आप options देखें तो try to locate the synonym क्योंकि वही आपका फिर correct answer हो सकता है keywords that can be underlined are names dates locations facts and figures ये सारे आपके important आपके elements रहेंगे for keywords why do we need keywords keywords इसीलिए जरूरी है because we cannot reread the passage we cannot go back to the passage again and again okay if you're going for multiple reading that itself is a problem because you just have 30 minutes and is अभी लास्ट ईयर तो क्लैट 24 क्वेश्चंस का आया था देयर वर टाइम्स जब क्लैट में 25 टू 28 क्वेश्चंस भी आते हैं तो अभी भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चंस आपको क्लैट में आ जाए क्लैट का पैटर्न थोड़ा भी चेंज हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस टू अप टू 32 ओके वो पैटर्न चेंज होता है तो होगा बट एज ऑफ नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 24 to 25 क्वेश्चंस इन क्लैट एंड यू जस्ट हैव 30 minutes so you have to read the passage at one go and you have to attempt the questions you cannot go back to the passage again and again because it will take a lot of time it's very time consuming okay we cannot afford to spend more time on one specific section just because we have not followed the correct strategy इससे बेटर ये होगा कि we need to correct our strategy so that हमारा जो time है we can solve we can read maximum passages all the passages and we can attempt maximum questions too so speed के लिए active reading is required and for that you are supposed to write down the keywords अब देखिए स्टूडेंट्स कीवर्ड्स क्यों जरूरी है 30 मिनट्स होते हैं एंड यू हैव करेक्ट आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है व्हेन यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स
Comprehending passage with different levels of difficulty and answering them correctly. आप पैसेज को जब कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आप उसको सही तरीके से और आपकी जो नॉलेज है उसको सही तरीके से अप्लाई कर दें इन द गिवन ऑप्शन. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑप्शन. जानबूझ के वो एक कॉमन ट्रैप दे सकते हैं. कुछ आपके ऐसे हिंटिंग वर्ड्स दे सकते हैं विच कैन इंडिकेट टू द करेक्ट ऑप्शन, बट फॉर दैट हमें हिंट्स पैसेज में भी तो मिलना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन. अब देखिए, वेयर इज योर माइंड अमिड्स ऑल दिस. जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपका माइंड कहाँ होता है? जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन उस वक्त क्या कर रहा होता है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट. एक्चुअली आप ये सोचते हैं कि वी माइट रन आउट ऑफ टाइम जब भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं. ऑल राइट, तो हमें लगता है मैम ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. बट मुझे लगता है कि कीवर्ड्स तो अगर आपने सपोज पैसेज आपका 450 वर्ड्स का है, आई थिंक आपके 5 to 6 कीवर्ड्स कैन वर्क वंडर. तो 5-6 वर्ड्स, चलो 10 भी कर लिए ज्यादा से ज्यादा, तो 10 वर्ड्स लिखने में क्या इतना टाइम लगता है जितना हमें पैसेज को बार बार रीडिंग करने में लगता है? बेटर है कि हम पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए, सो दैट दिस एंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. उसके लिए बेटर है कि हम पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, लिखें. दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वी विल बिकम एक्टिव रीडर. एंड एट द सेम टाइम आप मल्टीपल रीडिंग को भी अवॉइड कर सकते हो. तो मल्टीपल रीडिंग टेक्स मोर टाइम देन राइटिंग डाउन द कीवर्ड्स, सो इट्स एक्चुअली नॉट द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सेकेंड देखिए, thinking about bucking under pressure while trying to answer each question correctly within the given time. अब टाइम का तो मसला होना ही नहीं चाहिए, तो सेकंड प्रॉब्लम कैन इजीली बी रिजॉल्व. नाउ गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन विद डिफरेंट वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग यूज्ड बाय एग्जामिनर. कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में आपको बहुत क्लोज सिनोनिम्स यूज करके देते हैं ऑथर. तो आपको पैसेज का कीवर्ड याद है तो आपके जो ऑप्शंस हैं आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाओगे. अदरवाइज you keep getting confused and then again you will kill your time between the two options, choosing between the two options. So better है कि हम keywords पे ज्यादा ध्यान दें. Now next, thinking of what you are unable to attempt a few of the questions types because you have no time. तो कभी कभी ये होता है हमारे साथ कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो either we skip the question or we simply bark कि ठीक है वो गैस वर्क पे बिना ज्यादा फोकस करे हमने जल्दी जल्दी कर लिया. तो इट विल प्रिवेंट यू व्हेन यू एक्चुअली राइट डाउन द कीवर्ड्स. व्हाट्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही थी. यू कैन ऑल्सो टेक a screenshot of this particular slide because this is really important. Read the question carefully. So आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो पढ़ो बच्चा, एंड देन मेक अ मेंटल नोट ऑफ कीवर्ड्स, सिनोनिम्स फॉर द क्वेश्चंस. आप जो कीवर्ड्स लिखते हैं तो आप उसको सिनोनिम भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जैक्ट कीवर्ड. स्किम एंड स्कैन द गिवन पैसेज, उसको आपको स्किम करने की जरूरत है. अंडरलाइन द कीवर्ड. अच्छा, मैं अंडरलाइनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ. मुझे लगता है बच्चा, व्हेन आई आस्क यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग कीवर्ड्स, इफ आई गिव यू अ लिबर्टी दैट यू कैन अंडरलाइन फ्रॉम द पैसेज, एक ह्यूमन नेचर है, हमारी एक मेंटालिटी है कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. अंडरलाइनिंग इज इजी, तो आप यू एंड अप अंडरलाइनिंग एवरीथिंग इन द पैसेज, which is obviously a wrong strategy, and that is the reason that I suggest my students to write down the keywords instead of underlining each and every point there. Okay. uh, Locate the keywords or keyword synonyms in the passage. Read the sentence next to the keyword. Check the questions and compare them with relevant part of the passage. You may not find any identical words easily in the question and the passage, so don't waste time finding the same word. Instead, look for synonyms. ये बहुत ही important points हैं बच्चा. Please write it down somewhere or you can simply take the screenshot. An extremely important strategy of underlining keyword is to identify the focus of the question. सबसे ज्यादा important है पहला कीवर्ड जो कि फोकल पॉइंट है, जिसके अराउंड पूरा पैसेज डेवलप हुआ है. एक तो जिसके अराउंड पैसेज डेवलप हुआ है और दूसरा क्यों डेवलप हुआ है. ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके कीवर्ड्स की लिस्ट में जरूर होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, फोकस और स्टेम ऑफ द क्वेश्चन इज अ वर्ड in the question that will help you choose the right option.
तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन स्टेम पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन स्टेम में हिंट गिवन है, व्हाट इज द ऑथर लुकिंग फॉर। ठीक है, होता है कई बार कि वो नेगेटिव डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस होता है, हमने नॉट या अनट्रू को मिस कर दिया एंड वी एंड अप मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, try to get the hints from the question and then choose the options given. So सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स को लिखने के लिए कि मैम हम कीवर्ड्स में किस तरह के पॉइंट्स लिखें। सो आई एम टेलिंग यू दैट देर आर 5 W's, WS और WH आप देख सकते हैं, 5 W है एंड 1 H है। ऑल राइट, W जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं एंड H इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वन इज हु क्वेश्चन वर्ड है, when क्वेश्चन वर्ड है, what क्वेश्चन वर्ड है, why क्वेश्चन वर्ड है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है। तो ये हमारे 5 W's हो गए एंड 1 H इज हाउ। ओके, तो ये जो आपके कीवर्ड्स होंगे, दोज कीवर्ड्स शुड बी अराउंड दीज 6 वर्ड्स, जिसमें 5 W's एंड 1 H को हम कवर कर सकते हैं। सो I have just shared like what all kind of information you should mark. What the topic is around, keyword, how the topic is developed in the passage, उसके लिए एक keyword, फिर बाकी आपके factual questions के लिए keywords are already there. Now next देखिए, this is passage 1. Kindly read the passage. So in this passage author has mentioned कि 1763 में चार्ल्स टाउनसेंड, he was appointed as first lord of trade and George Grenville was appointed prime minister. इन दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ था in 1763. Townsend, a specialist in American politics, advocated maintaining a permanent army in America. उन्होंने कहा कि हमारे पास एक परमानेंट आर्मी होना चाहिए अमेरिका में एंड दैट शुड बी फाइनेंस्ड बाय द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट टैक्सेस इम्पोज करता है लोगों पे गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको उसकी सैलरी से आपको एक परमानेंट आर्मी को मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज ही बिलीव दैट द कॉलोनीज शुड नॉट बी अलाउड टू रूल देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि आर्मी इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉलोनीज शुड नॉट बी दैट लिबरल कि वो खुद ही गवर्न करें, सेल्फ गवर्न बॉडीज हो। अगर वो सेल्फ गवर्न बॉडीज होंगी तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, करप्शंस, रायट्स, many more things can happen there. The colonies had already contributed to the war. उन्होंने कहा कि colonies ने war में तो already contribute करा है by raising and supporting a large number of soldiers while increasing their debts in the process. फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि ग्रेनविल ने 1764 में एक प्लान propose करा था in the House of Commons that mandated a variety of papers and documents in America bear stamps signifying payments. अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरीके का प्लान आया था उसमें, जिसमें आपका ये जो पेमेंट्स होती हैं, ऑल राइट, उसमें वेराइटी ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन अमेरिका कैन बी स्टैम्प्ड, ऑल राइट, विच कैन कन्वे सम काइंड ऑफ पेमेंट्स, मतलब अप्रूवल के बारे में बात हो रही है। अब देखिए आंसर यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन डिड ग्रेनविल प्रपोज अ प्लान मैंडेटिंग स्टैम्प्स इन मेनी पेपर्स इन अमेरिकन कॉलोनी, मतलब स्टैंपिंग को कंपलसरी कब करा गया। तो यहाँ पे क्लियरली पैसेज में दिया हुआ था 1764। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे क्या होना चाहिए थे स्टूडेंट्स, आप देखिए पहला वर्ड था आपका चार्ल्स टाउनसेंड, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेड, जॉर्ज ग्रेनविल जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, ऑल राइट। फिर ग्रेनविल ने प्रपोज करा, मतलब 1764 को ही प्रपोज द प्लान, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टैंपिंग और ऑन वेराइटी ऑफ पेपर्स इज मैंडेटरी, ऑल राइट। तो ये उन्होंने प्रपोज करा था 1764 में। तो आप ऐसे 4-5 कीवर्ड्स निकाल सकते थे यहां से, चार्ल्स टाउनसेंड, जॉर्ज ग्रेनविल प्रपोज द प्लान, फिर 1763, 1764, दैट्स ऑल। ओके, सो लेट्स get the answer. Grenville proposed a plan in March 1764. यहां पे क्लियरली दिया हुआ था, अगर आप यहां से कीवर्ड निकालते इन मार्च 1764, अगर आप इतना लिखते, ऑलरेडी आप सिर्फ 1764 लिखते, तो आप जब यहां पर देखते ऑप्शन, यू कुड हैव इजीली चोजन द करेक्ट आंसर हियर।
तो ये हमारा व्हाट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अराउंड व्हाट इज नॉट स्टेटेड। ये आपका नेगेटिव डिटेल बेस्ड क्वेश्चन हुआ। वी ऑल रिकॉल द लाकिला magnitude 6.3 events of 2009 in which 295 died, but go much further back to Abizono magnitude, which claimed 30,000 lives, and to 1703 when a trio of magnitude of 6 quacks killed at least 10,000 people। यहाँ पे अर्थ क्वैक्स के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, थैंकफुली अब क्वैक्स से हमें पता चला, वैसे तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में डाइड सम पीपल, तो आई हैड दिस इंप्रेशन इन माय माइंड इवन इफ आई डोंट नो व्हाट्स द टॉपिक इज, कि कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात हो रही है। क्वैक से पता चल गया अर्थ क्वैक के बारे में बात हो रही है, मैग्नीट्यूड से पता चल गया था कि अर्थ क्वैक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ऑल राइट, आगे इन्होंने कहा थैंकफुली tend not to see deaths on those scales anymore. This is because more robust building, better preparation, and more coordinated emergency responses after the fact. अभी इतनी ज्यादा आपकी डिजास्टर से इतनी ज्यादा we are like so many lives are not at stake only because टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो चुके हैं, आपकी बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो चुका है, एंड वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी। इट्स बेटर देन बिफोर, इफ नॉट दैट ग्रेट बट बेटर देन बिफोर। ओके, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन व्हाट इज नॉट स्टेटेड, गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, बेटर प्रिपरेशन में दिया हुआ था, सो वी कैन नॉट चूज दिस ऑप्शन हियर। जस्ट अ मिनट, अब देखिए, इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज गिवन इन द पैसेज, हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन वेल। सो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्वैक्स आर नॉट सीन एनीमोर। व्हाट इज नॉट स्टेटेड इन द पैसेज, आप देखो, क्वैक्स आर नॉट सीन एनीमोर, दिस कांट बी, दिस इज नॉट गिवन इन द पैसेज। यहाँ पे नॉट स्टेटेड पूछा था, प्रिपरेशन था, कंस्ट्रक्शन था, इमरजेंसी सिचुएशन था, ये लास्ट में आपको मिल जाएगा। बेटर प्रिपरेशन, मोर कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज, रोबस्ट बिल्डिंग, ये तीनों पॉइंट थे। ओनली दिस ऑप्शन वाज नॉट गिवन एनीवेयर इन द पैसेज, सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन भी इन्होंने नॉट स्टेटेड पूछा था। एज आई टोल्ड बिफोर कि आपको क्वेश्चन में से हिंट मिलती है दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर वी एक्चुअली लुकिंग फॉर। Now next question is around what, answering what, ये तो हो चुका है आई थिंक। कीवर्ड्स, अब देखिए क्वेश्चन में कीवर्ड्स कहाँ किस तरह के रहेंगे, रीजंस, डेथ आर रेयर, गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन वेल, ये आपको मिलेंगे। आप पैराग्राफ में ये जो उन्होंने आपके क्वेश्चन में दिए थे, ये आपको दिस इज बिकॉज नॉट टू सी डेथ्स एनीमोर, बेटर प्रिपरेशन, मोर रोबस्ट बिल्डिंग, मतलब सिनोनिम्स यूज करें। द वर्ड्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, ये वर्ड्स थे, और आपके पैसेज के अंदर रिलेटेड वर्ड्स थे। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला था दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर सिनोनिम्स, सो दिस इज देयर। ओके, ये एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स यूज करे गए हैं, एंड ऑप्शंस में आपके पैसेज के अंदर ये सारे वर्ड्स यूज करे गए हैं। दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पैसेज 3, a super hard metal has been made in the laboratory by melting together titanium and gold। अब उन्होंने कहा कि एक बहुत हार्ड मेटल बन सकता है, पता है टाइटेनियम इज वेरी हार्ड, द एलॉय इज हार्डेस्ट नोन मेटेलिक सब्सटेंस। लेकिन इन्होंने कहा कि जब आप गोल्ड एंड टाइटेनियम को एक साथ मेल्ट करते हैं तो और ज्यादा हार्ड सब्सटेंस आपका बनता है, compatible with living tissues, say US physicists. The material is 4 times harder than pure titanium। अब उन्होंने कहा कि टाइटेनियम itself very hard, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करते हैं गोल्ड के साथ तो और ज्यादा वो हार्ड हो जाता है, 4 टाइम्स ज्यादा हार्ड हो जाता है।
and has application in making longer lasting medical implants जिसे, और इसे मेडिकल इम्प्लांटेशन जो होते हैं वो और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, द हार्डेस्ट सब्सटेंस डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टाइटेनियम एंड गोल्ड आफ्टर दे आर. अब देखिए यहाँ पे आफ्टर दे, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेल्ट होते हैं दोनों को, व्हेन वी मेल्ट देम टुगेदर, पैसेज के अंदर दिया है. हाउ डू दे कंबाइन, आफ्टर दे आर मेल्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे आर था, मेल्टेड. अब देखिए स्टूडेंट्स, मेल्टेड इज द करेक्ट आंसर. सुपर हार्ड मेटल दैट हैज बीन मेड इन द लेबोरेटरी बाय मेल्टिंग टुगेदर टाइटेनियम एंड गोल्ड, ये हमने पैसेज में से निकाला इंफॉर्मेशन, एंड वी ऑल्सो aligned the information given in the question. We have actually aligned it properly. Next question देखिए. अच्छा, इसमें भी वही कीवर्ड्स, क्वेश्चन में क्या थे, हार्डेस्ट सब्सटेंस डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी, कॉम्बिनेशन. तो आपको पैराग्राफ में क्या मिले, सुपर हार्ड मेटल मेड इन द लेबोरेटरी टुगेदर. पैसेज 4. The Great Wall of China is one of the most remarkable structures ever built. सबको पता है, very impressive. All right, Great Wall of China, you must have seen at least the pictures. It was constructed by various Chinese dynasties. ये बहुत सारे Chinese dynasties ने आके उस वॉल को बढ़ाते गए to protect against invasions, ताकि चाइना में कोई इन्वेड ना कर पाए. Stretching over 13,000 miles. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी है जैसे 13,000 माइल्स उन्होंने जो बोला है. द वॉल स्पैन्स डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, और उन्होंने डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज सबको कवर करा है. इतनी लंबी आपकी 13,000 माइल्स लॉन्ग वॉल है. द लेबर इंटेंसिव project involved soldiers, peasants, and prisoners. Today, the Great Wall is a UNESCO World Heritage Site, attracting millions of visitors each year, eager to explore its historical significance and breathtaking views. तो बहुत ही impressive है. People just go visit. They try to recollect some ideas around history as well, and at the same time, they are all astonished by seeing such a beautiful wall. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है. Why was the wall constructed? Why was the Great Wall of China built? Why? अब देखिए यहाँ पे why का आंसर है to protect against invasion. So this is our lookup in the passage. Passage के अंदर this statement is directly given. This is our lookup in the passage. Okay? अब देखिए आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए था to protect against invasions. कीवर्ड्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, प्रोटेक्ट, इन्वेजन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ नेक्स्ट पैसेज, पैसेज 5. यहां पे वेयर क्वेश्चन इज आंसर्ड. तो हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर. ठीक है. अब देखिए, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ. लंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में हमें ऑक्सीजन देता है, सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एंटायर वर्ल्ड. इसीलिए इतने सारे ट्रीज है. ऑल राइट, वहां पे मिलियंस ऑफ ट्रीज आर देयर. सो इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द लंग्स ऑफ अर्थ. इज क्रूशियल इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट. जाहिर सी बात है, ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इसका मेजर रोल होता है. अदरवाइज ये फॉरेस्ट अगर नहीं हो तो हमें प्योर आपको ऑक्सीजन नहीं मिले. ऑल राइट, दिस नेचुरल प्योरीफायर इन साउथ अमेरिका produces roughly 20% of the world's oxygen and is home to an immense diversity of wildlife. इसमें आपको अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट सब मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली deforestation and human activities are threatening this vital ecosystem. Conservation efforts are essential to protect rainforest and ensure its survival for generation. अब जाहिर सी बात है, अगर ये फॉरेस्ट आपका कहीं ना कहीं जाके बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन, सो इस अमेरिकन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर
like they are at stake, they are in the process of deforestation, धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे we need to take a call कि we need to preserve Amazon rainforest, otherwise it will definitely what do we call it, contribute to in worsening the situation around global climate. तो अब देखिए वेयर इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड. क्लियरली पैसेज में दिया हुआ था आंसर. आई होप यू हैव मार्क्ड इट. दिस नेचुरल प्योरीफायर इन साउथ अमेरिका. तो वेयर का आंसर इज गिवन साउथ अमेरिका. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट देखिए कीवर्ड्स. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, डाइवर्सिटी, conservation efforts. These are the important keywords. Passage 6 देखिए स्टूडेंट्स. Marie Curie, a pioneering physicist, chemist, conducted groundbreaking research in radioactivity. सबको पता है बच्चा, she has contributed a lot. She won the Nobel Prize. She was the only person to win Nobel Prize in two different scientific fields. Her discoveries, including the elements of polonium and radium, paved the way for advancement in medical treatments. सबको पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर रहा है. एंड वो पहली विमेन थी हु वॉन द नोबेल प्राइज. मतलब among two, she was the first woman. And Curie's dedication to science, even in the face of immense challenges, continues to inspire scientists around the world. अब who was Marie Curie? यहाँ पे clearly लिखा है a pioneering physicist and chemist. B seems to be the correct answer. अब दोबारा देखिए. She conducted groundbreaking research on radioactivity, a pioneering physicist. B will be the correct answer. अब नेक्स्ट देखिए pioneering physicist, chemist, groundbreaking radioactivity, Nobel Prize, polonium, radium, nuclear energy. All these will be the keywords for this passage. All right. Well, students, I hope you must have understood uh, everything which I really wanted to teach you by this particular video. And आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन में या हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कीवर्ड्स या कीवर्ड्स होते क्या है इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी. आई रियली अप्रिशिएट इफ यू ऑल कैन apply the today's learning in the upcoming mocks and of course in class 2025. All the best. Bye bye. Take care.